Okay, so what is our task? Our task is to find highest and lowest elements of an array. So I will take two variables now. I'll say let min equals to ARR of 0. Then I'll take let max equals to ARR of 0. I have taken two variables. Then I say ARR dot for each. Right, I take some variable, I give a callback function with x as a parameter, and in this I say if x is less than min, then min equals to x, else if x is greater than min, sorry, not min, if x is greater than max, I say max equals to x. Right, and then I say console.log min comma some and max. Let's see if this works. So I got 10 and 750. Right, what is in my array? If you can see, yes. So this is my array. The lowest element is 10, highest element is 750. Let us change these. Let me make this thing 2 and let me make this 1500. Right, so what it should print is 2 and 1500. So it prints 2 and 1500. So what I have done is, right, I have taken two variables and initialized both of them to the first element, and then I check each element, and if I get a number which is less than ARR of 0, right, I'll assign min to that number, right, and same way with max, right. So that is the logic which we follow in this. Understood? सर फिल्टर वाला बताओ मैं एक बार. हाँ, फिल्टर पे आते हैं ना, ये दो है ना अपने पास. ये समझ गया मिन मैक्स? Okay. Now, what does filter do? Right? It finds a subset of an array. Right? Subset matlab subset will always be less than equal to the number of the array, to the array. Right? And subset can also be 0. So it finds a subset of an array depending on some condition. That is what a filter does. Right, so I'll say let ARR1, और क्या निकालना है अपने को, odd निकालना है, तो let odd1 या odd ARR equals to ARR dot filter. Again I'll send a callback function inside callback like this. Right, and in this what I would say if x mod 2 not equals to 0, मतलब क्या कि x is odd, I would simply say return x, and then I would say console.log odd ARR. तो फिल्टर क्या कर रहा है, एट द एंड वो एक एक एलिमेंट पे इटरेट करता है, और अगर वो एलिमेंट ये है ऑड है, ये केस में ये मेरी कंडीशन है जिसके बेसिस पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो उस एलिमेंट को ऑड एरे में ऐड करता है. इतना ही काम वो कर रहा है. तो ऑड एरे में क्या रहेगा, आपका जो ये बड़ा एरे है, राइट, इसमें के सिर्फ ऑड एलिमेंट्स विच विल बी, ये केस में ओनली 35. सो दिस ऑड एरे शुड प्रिंट ओनली 35. Let's check. I'll save this. So it printed me only 35. In the same way, second क्या है, elements greater than 100. तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, 1500, 750 and 150. So how will I do that? I'll say let ARR 100, ऐसा ही कुछ तो नाम देता हूँ, equals to ARR dot filter, again a callback function,
and inside this I have to check if x is greater than 100 or not. So I'll say if x is greater than equals to 100, I'll say return x, and I would say console.log ARR 100. So what I got is only those elements which are greater than 100. Is it clear? क्लियर है नहीं है? ये ग्रेटर देन वाला एक क्या क्या? ये ग्रेटर देन हाँ 100 वाला है। ये देखो, I'll take let me do it in another way, right? I'll say let temp ARR equals to एक blank array मैंने लिया. अब मैंने for loop लगाया. I say for let I equals to 0, I is less than ARR dot length I plus plus. ये क्या है? नॉर्मल एरे का इटरेशन है, राइट? फॉरगेट द फिल्टर फंक्शन अभी के लिए. अब मैंने क्या चेक करना है? अब मुझे हर एक एलिमेंट कैसे मिलता है? ARR ऑफ आई से मुझे वो एलिमेंट मिलता है, एक एलिमेंट. सो व्हाट विल आई से? आई विल से इफ ARR ऑफ आई इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, अगर वो एलिमेंट 100 से बड़ा है तो आई विल से TEM temp app dot push and I'll pass ARR of I. ये वो काम फिल्टर कर रहा है. एंड इफ आई से console.log temp app, it will print me the same thing, राइट? यही चीज़ डायरेक्टली एक फंक्शन के थ्रू हो रही है. इसमें ज़्यादा सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, उसमें सिंपल इससे काम हो जाता है. अंडरस्टूड? यस सर. है ना? ये करके देखो, ये जैसे जैसे करने लगोगे ना वैसे वैसे वो अच्छे से समझेगा. ठीक है, आई टेक एक ARR1 एरे लेता हूँ विथ सेम एलिमेंट्स, राइट? नाउ इफ आई से console.log ARR1, तो ये क्या करेगा? ये वैसे का वैसा एरे जो है वो प्रिंट कर देगा. तो 10 to 1500 ये सब उसने प्रिंट कर दिया, राइट? नाउ if let us say I have to add a new element in an array, how can I add? At the end अगर मुझे ऐड करना है तो I can simply say ARR1 dot push से 500. मुझे 500 ऐड करना है तो वो क्या करेगा? एंड में, एरे के एंड में 500 डाल देगा. इफ़ आई अगेन से console.log ARR1, तो ये क्या करेगा? ये 500 डालेगा. ठीक है, तो एंड में 500 आया. ये ऐसे क्यों प्रिंट हुआ? वो टर्मिनल का ये है, अपना कुछ ये नहीं है, राइट? सो व्हाट इट डिड इज इट added 500 at the end of an array, right? If I have to remove the last element, I can simply say ARR1 dot pop, and then if I say console.log ARR1, वो क्या करेगा? वापस वो 500 जो हमने ऐड किया था वो निकाल देगा. मैं पॉप 2 बार करता हूँ. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, पहले 500 हमने पुश किया तो एंड में यहाँ पर इसके बाद 500 गया. उसके बाद मैंने एक बार पॉप किया तो 500 निकल गया. फिर से पॉप किया तो ये 150 भी निकलना चाहिए. तो यहाँ जो प्रिंट होगा दिस विल बी 10 to 1500, 35 एंड 750, राइट? 10 to 1500, 35 एंड 750, राइट? वैसे ही पहला एलिमेंट अगर निकालना है तो यू कैन ऑलवेज से ARR1 डॉट शिफ्ट, and if you say console.log
कैसे करेंगे सर? बीच का एलिमेंट निकालना है तो पॉप से नहीं होता, पॉप हमेशा आखिरी से काम करेगा। बीच का एलिमेंट तुम शिफ्ट के थ्रू कर सकते हो। आई विल टेल यू, धीरे धीरे एक 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 जाते हैं। राइट, तो ये शिफ्ट ने क्या किया, पहला एलिमेंट निकाला, ये 10 हटा दिया शिफ्ट ने। ये समझ में आया? शिफ्ट क्या करता है? पॉप क्या करता है, आखिरी से निकालता है। शिफ्ट क्या करता है, पहले से निकालता है। राइट, फिर लेट मी टेक दिस एरे अगेन। इसको मैं ये ऊपर की चीज़ें उड़ा देता हूँ, नहीं तो वो बहुत अननेसेसरी चीज़ें ये करेगा। Okay, right, now let's say if I do a slice, let's say I do a splice, ठीक है, I say 1,2, स्प्लाइस के पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। लेट्स सी व्हाट दिस प्रिंट्स। मैंने एक स्प्लाइस नाम का फंक्शन है वो यूज किया, उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स दो दिए, एक 1 और एक 2, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड देन विल अंडरस्टैंड कि ये स्प्लाइस करता क्या है। ठीक है, पहले इसने क्या किया, पहले इसने सारे एलिमेंट्स प्रिंट किए। हमने जैसा ये अपना एरे है वैसे का वैसा हमने प्रिंट किया यहाँ पर, तो इसने 10 से लेके तो 150 तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए, राइट। उसके बाद व्हाट आई यूज्ड इज स्प्लाइस, एंड इन स्प्लाइस व्हाट डिड आई डू, मैंने बोला कि 1,2। तो अब इसने प्रिंट क्या किया देखो, इसने सब कुछ प्रिंट किया लेकिन एक्सेप्ट 2 एंड 1500। मतलब क्या कि एरे का ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इंडेक्स वाइज, राइट। तो उसने फर्स्ट यानी इंडेक्स 1 से, व्हाट इज इंडेक्स 1, ARR1 ऑफ 1 इज दिस वन, तो इंडेक्स 1 से 2 एलिमेंट उसने उड़ा दिए, राइट। इंस्टेड इफ आई से इंडेक्स 2 से लेके तो एक एलिमेंट उड़ाओ, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल इट प्रिंट? क्या प्रिंट करेगा? सर 2 और 1,1500 कुछ होंगे सर। प्रिंट क्या करेगा बताओ मुझे। 2 is the index. What is index 2? It is 1500. And 1 is कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उड़ाना है, लेट्स सी। तो उसने क्या किया, इंडेक्स 2 विच इज 1500 एंड कितने एलिमेंट्स उड़ाए, तो एक सिंगल एलिमेंट यानी 1500 जो एलिमेंट था उसको उड़ाया। तो इसने क्या प्रिंट किया, 10, 2, 35, 750 एंड 150, ये 1500 को उसने उड़ाया। सर 2 से राइट लिया कि लेफ्ट लिया उसने? राइट लेफ्ट मतलब नहीं समझा। सर मतलब आपने बोला ना कि 2 से एक ही एलिमेंट हटा है, हाँ, तो जैसे मतलब अगर अपने को जैसे 2 से 1500 भी हटाना है और 35 भी हटाना है, हाँ, तो अगर 2 डाला तो दोनों हटेंगे क्या? बिल्कुल हटेंगे। हट गए? हाँ मैं वही पूछ रहा था कि लेफ्ट तरफ के एलिमेंट हटेंगे कि राइट तरफ के एलिमेंट हटेंगे? राइट के।
सर अब वो असेंडिंग ऑर्डर बताओ ना इसमें एक बार। अभी अभी मैंने 2 के बदले -2 दिया, तो -2 से उसने क्या किया, 2 एलिमेंट्स आखिरी से हटाए। सी, इफ आई गिव इट +2, यानी 2 से लेके 2 अगर मैं उड़ा रहा हूं तो ये क्या उड़ाएगा, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड एलिमेंट, ये तो उड़ाएगा, राइट, विच इज उसने 1500 और 35 उड़ाया, ये तो क्लियर है। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। ओके, नाउ इफ आई डू -2 एंड 2, तो ये क्या करेगा, एरे के पीछे से 2 एलिमेंट पहले तक, यानी दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, यहां से 2 एलिमेंट उड़ाएगा, मतलब 750 और 150 को उड़ाएगा, राइट। तो तुम कहां से, यानी अगर तुम -2 देते हो तो वो पीछे से आएगा, +2 देते हो तो आगे से आएगा। अंडरस्टूड? सर राइट से 1 से चालू होगा ना? हाँ 1 -1 -2 0 से नहीं होगा ना? हाँ, -1 -2 से, -0 नहीं रहता ना। वो तो नहीं रहेगा ना। हाँ, समझ गए पक्का? सर हेलो। हाँ बोलो। सर वो एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में जो प्रिंट कराते हैं ना, वैसा वाला एक बार बताओ क्या? ओके, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए व्हाट वी हैव इज अ फंक्शन कॉल्ड एज सॉर्ट फंक्शन। तो आई विल से arr1 डॉट सॉर्ट, ठीक है। नाउ व्हाट दिस फंक्शन टेक्स, दिस फंक्शन टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन with 2 parameters a comma b, ठीक है। अभी what I will say, I will say if a is greater than b, तो I will say return 1, else I would say return -1, and इसके बाद I would say console.log arr1. Let's see what happens. It is sorted. तो ये इंटरनली क्या करता है, ये सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, एक एलिमेंट लेता है, राइट, यानी दो एलिमेंट्स लिया, उनको कंपेयर किया, 2 एलिमेंट्स लिया, उनको कंपेयर किया, और उसके बेसिस पे ये सॉर्ट करता है। तो सॉर्ट का एग्जैक्ट मतलब यूज क्या रहता है हर चीज में? सॉर्टिंग का मतलब, जैसा अगर तुम लेट्स से जोमेटो देख रहे हो, तो जोमेटो में तुम जोमेटो से अच्छा अमेज़ॉन एक एग्जांपल है, तो अमेज़ॉन में तुम देख रहे हो कोई एक मोबाइल ऐप है, अमेज़ॉन ऐप है, उसमें तुमने कुछ तो सर्च किया, लेट्स से कुछ भी टेलीविज़न सर्च किया, तो टेलीविज़न, बहुत सारे टेलीविजन्स आएंगे तुम्हारे सामने में जो तुम्हें डिस्प्ले होंगे। अब उसमें से अगर तुम्हें ये देखना है कि सबसे सस्ता कौन सा है, या इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस तुम्हें देखना है, राइट, तो वो तुम देख सकते हो। कैसे करोगे, वो होता है ना एक उसमें ऑप्शन, प्राइस लो टू हाई या प्राइस हाई टू लो, हाँ हाँ। है ना, दैट इज व्हाट इज सॉर्टिंग। कोड बनाते वक्त सर, क्या? कोड बनाते वक्त क्या बनाते वक्त? मतलब अभी मतलब कोड बना रहे हैं ना अपन, हाँ, उसमें कैसे यूज करना, मतलब किस चीज के लिए? क्यों, वो भी तो कोड ही रहेगा अमेजोन में। अब जैसा सॉर्टिंग, कैसे एक एग्जांपल दूँ, अब तुम्हें लेट्स से एक एरे है, ये एरे में सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्टोर्ड है,
अब तुम्हें देखना है कि सबसे लोएस्ट सैलरी किसकी है, हाईएस्ट किसकी है. यस, एम्प्लॉयज़ को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी, तो यू विल बी एबल टू डू दैट. ठीक है सर. है ना. इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग वो जेसन करेंगे ना, वैसे और अच्छे से समझेगा. अपना जेसन होने का है अभी. ये क्लियर है. हाँ सर. राइट. सॉर्टिंग, फिल्टर, कैसे वो फिल्टर यूज कर रहे हैं, पुश ऑपरेशन, बेसिक पॉप ऑपरेशन. राइट. स्प्लाइस कैसे करते हैं, कैसे एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स को उड़ाना है, कैसे उड़ा सकते हो. राइट. तो ये सारे एरे के ऑपरेशंस है. फिर फॉर ईच हमने देखा, फॉर ईच लूप कैसे काम करता है. एक एक एलिमेंट पे वो घूमता है एंड देन इट इटरेट्स एंड डज द थिंग्स. क्लियर.